हम लोगों ने पिछले क्लासेज में व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और व्हाट इज इट्स स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल डिसीजंस, इन सभी तथ्यों के बारे में देखा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शनल एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हिच टाइप ऑफ फंक्शंस are to be discharged under financial management by the finance executives. These functions can be broadly classified into two categories. The first one is primary function and second one is secondary, or you may say hidden function, या उसको क्या कह सकते, गौण, है ना, अप्रत्यक्ष बता सकते हो आप। तो फाइनेंशियल फंक्शंस जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें सबसे पहला जो काम होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न्ड विथ फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इम्पोर्टेंट फाइनेंस फंक्शन विच इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट, determination of financial policies and procedures which are to be followed in coming period of time, and that time must be defined. That may be for next year, that may be for coming 5 years, whatever be the short term financial plan, whether it is going to be prepared for long term period purpose or short term period purpose, that is another thing. यानी I mean to say financial planning may be processed for long term period, that will be called long term financial plan, and short term in order to satisfy short term objectives or goal, that will be known as short term financial plan. So financial planning is one of the important finance function in which capital structure planning, financial structure planning, capital expenditure planning, working capital planning, tax planning, these are the 5 main subjects of financial planning. Apart from it, other plannings are also required. What is capital structure planning? Capital structure refers to proportional share of long-term means of finance which is used by a company, a firm, a corporate house in its total capitalization. यानी कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग के अंतर्गत ये जो 2 प्रकार के सोर्स ऑफ कैपिटल हैं, डेब्ट कैपिटल एंड ओनर्स कैपिटल, दोनों के बीच अनुपात क्या हो मिक्सिंग का, यानी ये रिफ्लेक्ट करता है कैपिटल कंपोजिशन को, और कंपोजिशन में जो रेशियो यूज किया जाता है मिक्सिंग का डेब्ट्स और प्रोप्राइटर्स कैपिटल के बीच, उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन या कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग कहते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, ए लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर्ड फॉर इट. I mean that factors will be discussed later on in next classes. When capital structure planning will be discussed, then the factors in affecting the capital structure planning will also be discussed. यानी ये इम्पोर्टेंट प्लानिंग होता है क्योंकि ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी को सीधा असर करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे कि सपोज कीजिए एक बिजनेस है जिसमें 1 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो आप 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप चाहो तो 1 लाख रुपया पूरा का पूरा अपने घर से पूंजी लाके, यानी ओनर्स कैपिटल ही केवल रखा जाए, ठीक। दूसरा ऑप्शन है कि 50,000 बैंक से फाइनेंस कराया जाए और 50,000 अपने फादर से लेके, यानी गार्जियन से लेके आप इन्वेस्ट करो, तब भी फर्म को 1 लाख कैपिटल रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन इज
1,00,000 रुपए का व्यवस्था मैनेज आपने 70,000 लोन से और 30,000 अपने सोर्स से किया, यानी ओनर्स कैपिटल 30, 70 डेब्ट्स कैपिटल, ओनर्स कैपिटल 50 एंड 50 डेब्ट्स कैपिटल, एंड फर्स्ट ऑप्शन में 100% यानी 1 लाख फ्रॉम ओनर्स कैपिटल. सपोज after completion of 1 year operational activity, when your financial results is find out, we get that the firm has earned 40,000 profits during the financial year. So what will be rate of return on capital? That is 40%, because you have invested 1 lakh rupees and the profit earned by that activity is rupees 40,000. The rate of return will be 40%. 40% for all. What was the real return to owner? If you observe actual return to owner, then in first situation, in first plan, when 100% capital investment made by the owner, it will be 40%. In second, in which 50-50 ratio has been used, equal debt and capital and equity capital, owners capital. The out of 40,000 earning, you will have to pay rupees 5,000 as an interest to bank. On 50,000 loan, you will have to pay interest at the rate of 10%. That will be amounted to rupees 5,000. So after deducting the interest payable to bank, you will get 35,000 return. And when you compare with your initial investment of 50,000, the rate of return will be 70%. In first situation, no doubt the size of profit belongs to you rupees 40,000, but the rate of return is 40%. But in second of case situation, you have got 70% return, that is 35,000 on your 50,000 investment. In third case, third plan, you have invested 30,000 owns capital and 70,000 debts capital. In that situation, 40 out of 40,000, 7,000 will have to be paid to bank as interest. You will have remaining amount of profit 33,000, while your initial investment was rupees 30,000 only. On your 30,000 investment, you have got your return 33,000. So that will be 110% return. आपने 30,000 लगाया और 33,000 रुपये आपके लिए प्रॉफिट बच गया इंटरेस्ट देने के बाद, तो 110%. तो यही मिक्सिंग क्यों जरूरी होता है? देहाती भाषा में कहते हैं बरकतियार होता है ना, यानी फैलता है, कवरेज बढ़ता है. किस चीज का? तो रिटर्न का. तो फर्स्ट सिचुएशन में आपने मिक्सिंग नहीं किया डेब्ट कैपिटल का, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न 40% हुआ. सेकेंड ऑप्शन में आपने 50-50 मिक्सिंग किया कैपिटल का, डेब्ट्स का, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न 70% हुआ. और आपने थर्ड में 70 लोन और 30 ओन कैपिटल का मिक्सिंग किया, तो आपको 110% रिटर्न मिला. तो ये कौन सा आपके लिए सूट करता है, ये बहुत मायने रखता है. तो इसी चीज का प्लानिंग हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत प्लान करते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ प्लान शुड बी एप्लीकेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. That is to be decided by considering all different types, lots of factors, है ना. तो उस सब पर विचार अगले चैप्टर में हम करेंगे. नाउ व्हाट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर प्लानिंग. आपने कैपिटल कंपोजिशन तैयार कर लिया, फंड अरेंज कर लिया, उसके अनुसार से 50,000 लोन भी ले लिया, 50,000 अपना घर से भी कैपिटल लगा लिया. तो बैलेंस्ड स्ट्रक्चर आपने तैयार लिया इन रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, इन कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू. अब आप उस फंड का एलोकेशन करोगे, बंटवारा. तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यूनिट्स होगा.
कुछ फिक्स्ड एसेट्स में लगाओगे, कुछ वर्किंग कैपिटल में लगाओगे, फिर फिक्स्ड एसेट्स में लैंड में कितना, प्लांट में कितना, मशीन में कितना, फर्नीचर में कितना, अदर इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट्स में कितना, है क्या नहीं? तो ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है किसी फर्म के बैलेंस शीट का जो टोटल होता है ना, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, करंट एसेट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इस कंप्लीट सेट ऑफ एलोकेशन को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बोला जाता है, या एसेट स्ट्रक्चर भी आप उसको बोल सकते हैं, टोटल एसेट स्ट्रक्चर। तो इसका प्लानिंग फर्म के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए। अब आप जितना फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन जो हो रहा है फर्म के प्रोडक्शन कैपेसिटी का, उसी के अनुरूप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपेसिटी इंस्टॉलेशन, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल आल्सो बी रिक्वायर्ड। तो आपने पहले दो भाग में फंड को एलोकेट किया, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना होगा आउट ऑफ 1 लाख एंड वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना होगा 70 लाख। फिक्स्ड कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करेंगे 30 लाख या 70,000 फिक्स में, 30,000 वर्किंग कैपिटल के रूप में, रनिंग कैपिटल जो रोटेट करेगा। तो इसके बाद ये 30,000 में कितना इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक्स में, कितना कैश हैंड में रखोगे, कितना कैश एट बैंक, यानी कैश पोजीशन क्या मेंटेन करोगे, और कैपिटल गुड्स जो क्रेडिट सेल करेंगे, तो उधार जब बिक्री करेंगे तो डेटर क्रिएट होगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होगा, तो उसमें आपका कैपिटल किसी और के पास इंगेज्ड रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, तो उसमें क्रेडिट में कितना आप अकाउंट रिसीवेबल में इन्वेस्ट करोगे। तो 3 कोर करेंट एसेट होता है, वर्किंग कैपिटल का 3 कंपोनेंट होता है, उसको कोर कंपोनेंट कहते हैं। बिना कैश संभव नहीं बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन करना, और बिना इन्वेंट्री स्टॉक के भी नहीं संभव है। और आप अगर केवल कैश सेल्स करते हो तो आपका बिजनेस का रूप छोटा होगा, इसलिए क्रेडिट सेल आवश्यक हो गया बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, मार्केट स्पेंडिंग के एक्सपेंशन के लिए। तो आपने क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया तो उसमें भी कैपिटल इंगेज होगा। तो ये 3 कोर जो कंपोनेंट्स हैं वर्किंग कैपिटल के या करंट एसेट के, उनका आपस में बंटवारा कैसे होगा। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उससे रिलेटेड है, एलोकेशन ऑफ फंड्स। वर्किंग कैपिटल प्लानिंग यही चीज का एक हिस्सा, केवल वर्किंग कैपिटल, ये टोटल स्ट्रक्चर को बताता है। कैपिटल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टोटल स्ट्रक्चर को बताता है। अब हम इसको टोटल स्ट्रक्चर को 2 भाग में बताए। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग जो है उसका संबंध फिक्स्ड एसेट्स में फंड डिस्ट्रीब्यूशन से। हाउ मच कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां समझे कि इन्वेस्टमेंट मेड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। ऐसे तो इसका अपना एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस एक्सपेंडिचर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। However, there is no straight demarcation line between capital and revenue expenditure. You can't say that such expenditure will always be capital, such expenditure will always be revenue. In fact, it depends upon the nature of the organization, of job of the organization. Sometimes one expenditure somewhere treated as capital and somewhere treated as revenue. Suppose I have purchased this furniture for this profession. So I will use it for its whole life, for long period, that will be 5 years, 10 years, 20, whatever be its life. I will utilize it in my profession. But the furniture house from where it has been purchased, he has purchased for immediate selling purpose to us, to customers like us. So purchasing such type of furniture and selling them, purchasing them, selling them will be his normal activity, normal business activity. So an amount invested by him on these furniture for immediate selling purpose will be treated as
revenue expenditure for that organization. But for me, I have purchased not for immediate selling purpose. I have purchased as a permanent resource. That why it will be treated as कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर मी. इतना ही समझिए अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को कि फिक्स्ड एसेट्स के एक्विजिशन के ऊपर जो परमानेंट रिसोर्स के रूप में चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल जो खर्च होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. ये एक अपने आप में अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी चर्चा हमने पीछे वीडियोज में किया हुआ है, उसको आप स्टडी कर सकते हो. नाउ वर्किंग कैपिटल प्लानिंग, जिसमें वर्किंग कैपिटल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर फंड एलोकेशन के बारे में हम देखते हैं. टैक्स प्लानिंग, ये तो हमेशा से गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी एक होती नहीं, तो टैक्स मिनिमाइज किया जा सकता है विदाउट वायोलेटिंग रूल और टैक्स लॉज. इसके लिए प्लानिंग करना आवश्यक होता है, क्योंकि हर इवेंट जो में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं. मेनी टाइम्स द फर्म हैज़ टू पे डायरेक्ट टैक्स, indirect taxes like tax, GST paid on purchase of furniture, GST paid on acquisition of plant, GST paid on a stationery item. So various items are to be purchased by a firm, and on that items goods and service tax is required to be paid. So how it can be minimized? In what way a firm can get tax advantages? There are several provisions for tax relaxation, tax rebates, concessions, exemptions, deductions. तो उन सभी प्रावधानों का प्रॉपर स्टडी करके हमें इंडस्ट्री को, फर्म को किस प्रकार से टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं इन फेयर वे, नॉट बाय थ्रू माल प्रैक्टिसिंग और इवेजन. यानी हम कर चोरी या कर वंचना करके नहीं, हम प्लान करके, यानी हम अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को इस तरह से लेजिटिमेटली अरेंज करें कि हम टैक्स डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस का मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके. हमारे एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी है, जो उसके इनकम है, उन्हें भी टैक्स मिनिमम पे करना पड़े. इन तमाम चीज़ को कंसीडर करते हुए तब प्लान करते हैं, तो उसको टैक्स प्लानिंग कहा जाता है. यानी मिनिमाइजेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी बोथ फॉर फर्म एंड बोथ फॉर वर्किंग इंडिविजुअल्स इन द फर्म. ओके, नाउ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल. द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल. एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड, फिक्स्ड एसेट्स मैनेजमेंट, कैपिटल कंजर्वेशन को आप समझते हो. जो कैपिटल हमने लगाया बिजनेस में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, वो इंटैक्ट रहे. हमने शुरू में भी एग्जाम्पल पिछले वीडियोस में बिजनेस और प्रोप्राइटर के बीच रिलेशनशिप को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत बताया था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन ऑफ सेपरेट एग्जिस्टेंस. यानी मटकुरी भी सलामत रहे और उसमें डाला हुआ दूध भी सलामत रहे और दूध दही जमा के मिलता रहे. यही मैनेजमेंट है. यानी आपने जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस में लगाया, वो कैपिटल आपका इंटैक्ट रहे, वो लॉस ना हो, वो कायम रहे, बरकरार रहे. और उस कैपिटल का जो प्रॉफिट में कन्वर्जन है, प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी आपको मिलता रहे, लेकिन कैपिटल इंटैक्ट रहे. तो इसके लिए स्किल्स का यूज होता है. डेप्रिसिएशन प्रोविजन करना, ये क्यों किया जाता है? आज आप कोई एसेट है, उसका वर्किंग लाइफ लिमिटेड है. आप 50,000 उस प्लांट में लगाओ, उसका वर्किंग लाइफ 10 ईयर्स है. आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स द बिजनेस विल रिक्वायर प्लांट अगेन. How will you purchase? Suppose you have purchased this time by selling your domestic land, and after expiry of 10 years when it will become obsolete, then you will have to purchase again. तो क्या आप फिर जमीन बेचोगे घर का?
फिर प्लांट खरीदने के लिए, तो पता चलेगा कि हम प्लांट ज़मीन बेच के खा रहे हैं, बिजनेस कारोबार करके नहीं खा रहे। तो भाई हमारा ये कैपिटल है, ये कैपिटल तो कायम रहना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि 10 ईयर्स उसका लाइफ है, तो 5 to 6,000 डेप्रिसिएशन हर साल प्रॉफिट में से काट के जमा करते चले जाते हैं। तो क्या होता है, पहला साल आपने 5,000 किया, सेकेंड ईयर 5 किया, 10 हो गया आपके पास कैपिटल इकट्ठा प्रॉफिट से। बचे हुए प्रॉफिट को ही इंजॉय किया आपने, वो प्रॉफिट यूं ही व्यापार में बचा रहा। फिर आपने फिर 5,000 थर्ड ईयर में किया, 5,000 फोर्थ ईयर में किया, 5,000 फिफ्थ ईयर में किया, या 10,000 किया। तो ये 10 साल के वर्किंग लाइफ है, तो 10 × 50 50,000 आपका अरेंजमेंट हो गया। उस समय 50,000 कैपिटल आपका इंटैक्ट बचा रहा। इससे भी बेटर हम सोच सकते हैं, तो ये प्राइस लेवल चेंज कर रहा, उसको कंसीडर करते हुए तो अनुमान लगाए फॉरकास्टिंग के जरिए कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 10 ईयर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, एट दैट टाइम द प्लांट कॉस्ट विल बी गॉन अप बाय 20%। कहने का मतलब है आज के डेट में जो 50,000 मिल रहा है, उसका 20% वैल्यू प्राइस लेवल कम हो जाने के कारण, मुद्रा के परचेजिंग पावर को कम होने के कारण वो 60,000 में मिलेगा। तो हम 50,000 पे डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड किए, हमने रिप्लेसमेंट के लिए जो एडिशनल 10,000 का, उसका भी उसमें प्रोविजन कर लिया। तो 5,000 करके 10 साल नहीं प्रोवाइड करके हमने 6,000 करके 10 साल किया, तो 60,000 इजीली अवेलेबल हो गया। उससे ज़्यादा भी आप दिमाग लगाओगे तो हर एक साल जो 6,000 आप ड्रॉ कर रहे हो, उसको कहीं ऐसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में लगा दो जो 6,000 पे इंटरेस्ट, फिर अगले साल 6,000 प्लस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता जाएगा, तो वो मल्टीपुल होके सफिशियंट अमाउंट होगा, और वह अमाउंट कंपिटेंट अमाउंट के रूप में उस समय के एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ प्लांट के बराबर हो सकता है, जिसको रिप्लेसमेंट रिजर्व के रूप में हमने किया एक्स्ट्रा। तो ये एक अरेंजमेंट है जो कैपिटल कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट को बताता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कैपिटल को वो कंजर्व करके रखे। तो फिक्स्ड एसेट्स मैनेजमेंट, उसी प्रकार से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कोई भी व्यापार कारोबारी बिजनेस का एक्सपेंशन चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जितना इस साल है, अगले साल वो बढ़ जाता है। क्यों? प्राइस लेवल चेंज होने की वजह से। तो एडिशनल कैपिटल का अरेंजमेंट तो इंटरनल सोर्स से करना होगा। तो कैसे ये मेंटेन होगा अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इसके लिए प्रॉपरली वर्किंग कैपिटल का स्टडी करना जरूरी होता है, उसको सुपरवाइज करना, उसका मॉनिटरिंग करना, है ना। तो उसके लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बनाना, फंड फ्लो एनालिसिस करके पता लगाना कि पिछले साल वर्किंग कैपिटल क्या था, इस साल क्या है, क्या कितना बढ़ा, कितना घटा, क्यों बढ़ा, क्यों घटा, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल, हाउ इट कैन बी मैनेज्ड, how the reduction in working capital will be arranged, है ना। तो इन तमाम बातों के लिए हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का काम करता है फाइनेंस मैनेजमेंट के तहत। लिक्विडिटी एंड कैश मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मीन्स एन एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे कैश ऑन डिमांड। व्हाट इज योर एबिलिटी टू पे योर शॉर्ट टर्म क्लेम्स एंड डे टू डे एक्सपेंसेस। आपके दिन प्रतिदिन के खर्चे और जो अल्पकाल में देय लायबिलिटी है, क्लेम है आउटसाइडर्स का, उसको सेटल करने की क्षमता, आपकी एबिलिटी क्या है, दैट विल बी योर लिक्विडिटी। कैश पेमेंट एबिलिटी शॉर्ट में कह सकते हो, विल बी योर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी दो चीज में देखा जाता है, एसेट की लिक्विडिटी, फर्म की लिक्विडिटी। फर्म की लिक्विडिटी कैश पेमेंट एबिलिटी को कहते हैं, और एसेट्स की लिक्विडिटी एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो एसेट जितना आसानी से कैश में कन्वर्टिबल है, वो एसेट उतना ही अधिक लिक्विड माना जाता है। तो दोनों चीज को अलग अलग देखें तो लिक्विडिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर हाई लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आपका रिटर्न रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन हो सकता है। अगर आप लो कैश मैनेजमेंट करते हो, लो लिक्विडिटी मेंटेन करते हो, तो क्या होगा? स्कार्सिटी ऑफ कैश होगा। you will be unable to pay cash on demand,
to your claim holders. Suppose workers have not been paid their remuneration on time, they will go to a strike. How will you manage your operation? तो आप वर्कर को समय पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हो कैश के स्कार्सिटी की वजह से, लो लिक्विडिटी की वजह से, तो आपका क्या होता है, डिस्टर्बेंस पैदा होता है ऑपरेशन में। वर्कर्स छोड़ देंगे, स्ट्राइक पर चले जाएंगे, सप्लायर सप्लाई रोक देगा, आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। तो आई मीन टू से हाउ द फर्म कैन मेंटेन इट्स प्रॉपर एंड एडिक्वेट लिक्विडिटी, एंड इसके लिए लिक्विडिटी एनालिसिस जरूरी होता है। रिटर्न और रिस्क जो है दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करके रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ पॉइंट देखा जाता है, और कहाँ पे लिक्विडिटी का कॉस्ट बेनिफिट ट्रेड ऑफ हो रहा है उसके आधार पर प्रॉपर लिक्विड पोजीशन को तय किया जाता है, अकॉर्डिंगली कैश फ्लो को मैनेज किया जाता है। कंप्रीहेंसिव कंट्रोल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट also provides so many tools and techniques with the help of which financial manager analyze the financial performance and find out the reasons behind poor performance, and then suggest the authority to take major action against the negative results. So determination of financial standards, preparation of different operational budgets, these are the norms, these are the standards. The actual performance of the organization is compared with these norms and these standards. If there is any deviation from targeted performance or standard performance, then the so-called notice will be gone to the accountable authority. Why this return has gone down? तो क्या होगा, उस अधिकारी पे हम सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो अब उसका सो-कॉल्ड नोटिस का जवाब देगा। अगर सच जवाब नहीं हुआ तो पनिशमेंट होगा। तो अगला अथॉरिटी जब उस पद पे आएगा तो सतर्क रहेगा, उस तरह की स्थिति को आने से बचना चाहेगा। तो वो कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज कंट्रोल भी है, मैन पावर पे भी कंट्रोल है, वेस्टेज को भी कंट्रोल है, एक्स्ट्रा वैकेंसी को भी कंट्रोल है। तो चूंकि इन तमाम चीज़ों पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है कंट्रोल प्रोवाइड करता है, इसीलिए कंप्रीहेंसिव कंट्रोल भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। थर्ड पॉइंट फंक्शन का है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। इससे हम लोग अवगत हो चुके हैं, पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन और डिसीजन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप है, क्षेत्र है, मेन स्कोप है, बिकॉज इट हैज बीन डिफाइंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो विच टाइप्स ऑफ डिसीजन, दीज 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस are to be taken under financial management. Okay.